this institute. Okay. I want to tell you one thing. Amantraksharam nasti, nasti mool anaukhadam, ayogya purso nasti, योजका तत्र दुर्लभा। इस धरती पर जन्म लिया हुआ कोई भी प्राणी अयोग्य नहीं होता। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिससे मंत्र का निर्माण न हो सके। अमंत्राक्षरम नास्ति, नास्ति मूल अनौखदम। कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसकी जड़ से औषधि का निर्माण न हो सके, और कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस ये आवाज क्यों गूंज रही है? इट साउंड ओके? यस सर। ओके राइट। तो मैं कह रहा था कि आपके जीवन में आप जब भी फ्यूचर में वैल्यू सिस्टम को मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कितनी आवश्यकता है, इसका पहला प्रमाण ये है कि बिना वैल्यू सिस्टम के व्यक्ति में तत्व नहीं होता, उसका व्यक्तित्व पनप नहीं सकता। फर्स्ट थिंग I want to tell you all that if you want to be with the value system, success is yours, because value system will give you a backup, you will give you a base to make your temple a future. So value system is the most important thing. And आप सबसे पहले first thing I want to tell you, you should have a good relation with yourself. आपका अपने से संबंध कैसा है? अगर आपका अपने से संबंध ठीक नहीं है तो आपके जीवन में गति का होना असंभव है। आपका वैल्यू ठीक है नहीं है, ये डिपेंड करता है हाउ इज योर रिलेशन विथ योरसेल्फ। मैं सब लोगों को कहता हूं, ये बात कठिन है, पर फिर भी किया कर, दुनिया से मिले वक्त तो खुद से भी मिला कर। जब तक आप अपने को नहीं अपने से जुड़ेंगे, तब तक आपके जीवन का जो वैल्यू है वो स्टेब्लिश नहीं होगा और जीवन में गति नहीं आएगी। आप एक ऐसे विधा में प्रवेश कर रहे हैं जो समाज को एक डायमेंशन देने की तरफ आपको अग्रसर करेगा। वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। मैं आपको बताऊं कि आप अपने से जुड़ने के लिए यू नीड 6 थिंग्स, 6 पिलर हैं जो आपको आपके वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे एंड यू कैन बी ए मैन ऑफ सक्सेसफुल ओरिएंटेशन। उसमें पहली चीज है मैनेज योर डेली रूटीन। Rise earlier than the world. If you want to be a man of dimension, you must rise before the world. Sun is going to rise. मैं आजकल देखता हूँ 90% बच्चे रात में सोते हैं और रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं। तो नेचुरल क्लॉक जो उनका है, जो सिस्टम है बॉडी का, वो ढंग से काम नहीं कर पाता और आधे से ज्यादा बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, कनेक्ट टू योरसेल्फ बिफोर यू आर गोइंग टू कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड। आप पहले मॉर्निंग में उठकर अपने आप से जुड़े बिफोर यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, to engage with the world. And for that you will have to do 3 things: work for your body, work for your mind,
and work for your attitude. Work for your body is this, that you must spend at least 30 minutes in doing exercise for your body. And then you meditate after returning back from the exercise. You go for the bath, take a while, you can say have a place in which you can sit for 5 or 10 minutes to meditate, concentrate, and to analyze yourself and connect to the divinity. And the third is, you should work for your attitude. You watch it. Is it negative? Is it reactive? अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. Everybody has access to the net. You can go and see Matthew Ricard 2008 जून में EEG टेस्ट उन्होंने लिया था. वो फ्रेंच हैं और he is practicing meditation as per Buddhist processes, and he has written a beautiful article. He is telling that meditation can alter the brain and improve people's happiness in the same way that lifting weights put on the muscles. So meditation empowers your brain, and you will be a strong person for future planning. Second point, first point, manage your daily routine, and second, align yourself. You have fixed energy and time every day. My friends, my children, you please understand that you have fixed time every day. You have fixed time, and you have a fixed amount of energy given by the nature to you. What you will do? You resource what you have, get the resource, and plan your bucket. What you want to do today in the morning. Before going to work, you should have a vision for the day, what you are going to do. Anybody, if have heard the name of Michael Phelps? Anybody had heard the name of the swimmer Mike Phelps? Whenever he was going for an Olympic game or any type of competition, he was previously wait for a while and visualize the thing, that what is going to happen, and accordingly he planned himself for that orientation, for that function, or for that event. Before you are going to start the day, you should have prioritize your job. Suppose A, B, C. Prioritizing, first step I have told you, visualize the day. Second is collect your resources. What resources you have, you collect all the resources. And then third, up to what time you want to invest for the particular job. So तीन चीज आपको अगर करनी है दिन में, तो देखिए उसके लिए आपके पास संसाधन क्या क्या हैं, अर्जेंसी क्या है, संसाधन क्या क्या हैं, आपको कहां से मदद मिल सकती है, और आपके पास टाइम कितना है. और आप then after visualizing you plan your day. उसको after planning 1, 2, 3 job, ध्यान से आप सुनेंगे क्योंकि मेरा भी एक जो स्लाइड्स हैं वो कहीं और थे. अभी मैं एग्जाम खत्म किया हूँ बच्चों का, तो वो दूसरे कंप्यूटर पर है,
and I'm working on another computer. So you will have to listen it carefully. ध्यान से सुनना होगा आपको। तो ये तीनों एबीसी को आपने अगर प्लान किया तो उसको आप फिर से ध्यान से देखें, क्या आपको एबीसी के लिए सारे रिसोर्स हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास जितनी चीजें चाहिए वो है, तो वो तीनों जॉब आप प्रारंभ करिए। अगर नहीं है तो जॉब को चेंज करना है तो यू चेंज अकॉर्डिंगली, बट यू प्लान योर जॉब, अलाइन। एंड देन when once you have finished your planning on your job, आपने जितना काम प्लान किया है उस पर अपना स्वामित्व कि ये मेरा है, it is my baby, I will have to is Ubuntu. Ubuntu is a word from the Zulu community of South Africa. You should understand, आपको ये समझना चाहिए कि I am what I am because of your family, because of your college, because of your society. So you please check whatever you are going to do, is it going to harm your family, the name, the respect, the dimensions, anything is going to get harmed by this job, family, society, institute. अगर तीनों में से किसी को कोई दिक्कत आपको लग रहा है तो again change your job and change your schedule accordingly. And then review how we spend our day. At the end of the day, when you complete the job, review it. Have you done it gracefully? Have you done it with commitment? Then you are a winner. You can do, if 1-2 days, only for 15 days, you can do this process, the future is yours. Because the day is going to going to shape your future. If you will spend your day in a good way, you are going to have a wonderful future. So please note it down. And after this, I will come to the second point. These are only for yourself, making yourself, for caring yourself. So second thing, please modify your lifestyle. What is your lifestyle? Modify it. First, create a bedtime rituals. When you get up in the morning, you make your bed. This is the primary thing. When you get up in the morning, you make your bed. Because making bed is the most important thing. If your bed is haphazard, your day will be haphazard. So get up in the morning, make your bed, go for bathroom or go for bathroom, come back, make your bed. So you should make your bed. This is the first thing. And second, I have told you that the 6 pillar of caring your relationship with self. And then you cut down your gadget time. What is when there is excessive gadget exposure, melatonin is a light sensitive hormone. Gadget emit blue light. Every computer system is emitting blue light. So which can stop your sleep, disturb your sleep hormone. So if you are
interacting too much with your gadget, please understand that either you use a screen over that, or you should follow 20-20-20 rule to reduce a strain. Fasting every 20 minutes, look at an object about 20 feet away from your desk for 20 seconds. So walk away from your desk every hour or 2 hours and look at a distance object through a window for 20 seconds and of 20 feet distance. Am I clear? Am I clear to everybody? Am I audible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. And the third thing that I'm going to tell you, eat an early dinner. Don't go for a night dinner, or after 9 you should not take dinner. So go for early dinner. This will help you, making you a better person. And one thing I'm telling you, और चीजों को आप छोड़ो, अगर आपने अपने शब्द पर नियंत्रण कर लिया ना, अगर आपने बोलना, सिर्फ बोलना ढंग से शुरू किया, आपकी जिंदगी उसके राउंड सेप हो जाएगी। और बोलना बहुत, मैं हमेशा सबको कहता हूं, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द है औषधि, एक शब्द है घाव। तो जब भी आप कोई वर्ड्स आप अपने मुंह से निकालते हैं, बी अलर्ट, इट इज गोइंग टू बी योर आइडेंटिफिकेशन। यू आर ए पर्सन ऑफ योर वर्ड्स। शब्द ब्रह्म है। आपके व्यक्तित्व का निर्माण सिर्फ शब्द ही कर सकता है। शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए कंट्रोल करें शब्द को। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मीठा बोलो, नम्र रहो, सबसे करो स्नेह, कितने दिन की बानी है और कितने दिन की देह। हमारे गांव में कहते थे जब हम लोग बच्चे थे कि रजमन जिह्वा बाबरी, कहिगो सरग पताल, आप तो भीतर रहे जूती खात कपाल। कि जिह्वा अगर कुछ बोलकर अंदर चली जाएगी, लेकिन फेस आपको करना पड़ेगा। तो बोली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको निश्चित रूप से मॉनिटर करना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल हैव टू डू। और मैं आपको कहूंगा कि जब भी ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज मांगे आप, भद्रं नो अपि बाताय मनः, हे प्रभु मेरे मन को भली बातों की तरफ ले चलें। भद्रं नो अपि बाताय मनः, ये ऋगु और सामवेद दोनों में है। अगर ये आप करते हैं तो दूसरा स्टेज बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर्वान परित्यजेत अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिना। जो भी आपके स्वाध्याय करने में, अध्ययन करने में विरोधी वस्तुएं हैं, उनका त्याग कर दें। क्योंकि विद्यार्थी के लक्षण में बड़ा कहा गया है, काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृहीत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काक चेष्टा, सवेरे उठे आप, काक चेष्टा आपका हो, सूर्योदय से पहले जगिए, तन मन करिए शुद्ध, और भक्ति करें भगवान की, कह गए सत्य प्रबुद्ध। तो सवेरे आप उठे, काक चेष्टा
बको ध्यानम, बगुले को आपने ध्यान लगाते हुए देखा होगा। बगुला फोकस्ड होता है और जब भी उसकी चोंच पानी में गिरती है वो मछली लेकर ही निकलता है। बको ध्यानम। तो आपका जब भी आप पढ़ते हैं तो दो तरह की पढ़ाई होती है, सिंहावलोकन, विहंगावलोकन। एक तो आप सिंह की तरह अवलोकन करते हैं, एक पक्षी की तरह अवलोकन करते हैं, स्कैन मारा ऊपर से देखते चले गए। और एक फोकस्ड स्टडी होती है, दैट इज सिंहावलोकन और विहंगावलोकन। ये दोनों में कहां क्या करनी है, किसको ध्यान से देखना है और किसको स्कैन करना है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। एंड देन स्वान निंद्रा, आपकी निंद्रा हल्की होनी चाहिए। खाना उतना खाइए जितनी, आपको मैं बताऊं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपाना समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम, कि मैं मनुष्य के शरीर में स्थित हूं और मनुष्य जो भी अन्न खाता है वो चाहे चबाने वाला हो, चूसने वाला हो, चाटने वाला हो, पीने वाला हो, सारे अन्न को मैं पचाता हूं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, मैं प्राणी के अंदर रहकर उन अन्न को पचाता हूं। इसलिए भगवान को अगर आप ज्यादा आप सो जाते हैं, अन्न आपका कोई और पचा रहा है। आप याद रखें, अगर प्रभु को ज्यादा कष्ट देंगे आप, एक आवश्यकता से अधिक जिह्वा के रस में आप भोजन करेंगे, आपका शरीर अस्वस्थ होगा, क्योंकि एक सीमा के बाद अंदर बैठा हुआ परमात्मा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो बड़ी अल्पाहारी, गृह त्यागी। और आपको घर से आप ओबीडियंट रहें, सब कुछ करें, लेकिन घर की सांसारिक बातों से दूर रहना होगा, तभी आप लक्ष्य के प्रति अलर्ट रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गृह त्यागी। एंड हमारे यहाँ बच्चों को 6 चीज वर्जित है, काम, क्रोधम तथा लोभम। स्वाद, अच्छी चीज मिली और 10 किलोमीटर दूर मिल रही है, जाकर वो खा लिया, पढ़ाई सफर कर रहा है। तो काम, क्रोधम तथा लोभम, स्वाद, श्रृंगार, कौतुके, श्रृंगार करना, ज्यादा सजना सवरना, कौतुक, तमाशा, फिल्म देखना, मूवी, कंप्यूटर पे मूवी देखते रहना, कंप्यूटर का मिसयूज करना, अति निंद्रा, अति सेवेचा, ज्यादा सोना और ज्यादा किसी माने किसी के काम के प्रति ज्यादा उसमें समय इन्वेस्ट करना, अगर जरूरत नहीं हो तो। विद्यार्थी, क्रस्ट, ये खट वर्जित करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एंड एक चीज और आप ध्यान रखें, मैं आपसे कहूंगा कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ये आपके सबसे क्लोज आपके पेरेंट्स हैं। आप कॉलेज में हैं, ड्यू टू योर पेरेंट्स। आप पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, ड्यू टू योर पेरेंट्स। आप इस धरती पर अस्तित्ववान हैं, ड्यू टू योर पेरेंट्स। इसीलिए लिविंग गॉड ऑन अर्थ, हैव ए हग एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टू योर पेरेंट्स। उनको प्रणाम करिए, उनको हग करिए, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि जब भी संतान बच्चे के सामने, माता पिता के सामने में संतान आता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी इमिट होती है बड़े लोगों से, और वो आप जब उनके कलेजे लगेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको ट्रांसमिट होगी, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हैव ए रिस्पेक्ट, हैव ए हग फॉर योर एल्डर्स। एंड एम आई कम्युनिकेबल? मेरी बातें प्रैक्टिकल लग रही हैं आपको? मेरी बातें प्रैक्टिकल लग रही है? आपको सर बेटा दो चीज है, सुबह की चाय और बड़ों की राय, इसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। सुबह की चाय और बड़ों की राय, ये बड़ी
महत्वपूर्ण है। यंगस्टर्स मैं कहूंगा कि ये जरूर आप करें, और आप रोज प्रतिज्ञा करें कि अहम बुद्ध्या मनः संयंच्छामि, कि मैं बुद्धि से अपने मन का नियंत्रण करूंगा। मैं बुद्धि से अपने मन का नियंत्रण करूंगा। अगर आप बुद्धि से अपने मन का नियंत्रण करेंगे तो आप हमेशा लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे। और देखिए, अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं 21 दिन में आदत बन जाती है। एक राजा था, वो राजा वर्जिश कर रहा था, तो उसकी पत्नी आई, बोली खाना खा लें आप। उसने बोला कि नहीं, अभी मुझे, तुमको क्या पता, अभी मुझे वर्जिश करने दो, मैं वर्जिश करने के बाद खाना खा। 2 बार आई, तीसरी बार आई। उसने कहा तुम जानती नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं। उसने बोला ये अभ्यास है, जो आप उठा रहे हैं इतने वेट, ये अभ्यास है, कोई भी कर सकता है। तो राजा ने कहा तुमसे होगा क्या, तुम ये वेट उठा सकती हो? उसने बोला मैं इससे दुगुना वेट उठा सकती हूँ, आप मुझे 5 साल का समय दीजिए। राजा ने कहा ठीक है। तो रानी चली गई गांव के, दूर के गांव में एक, और वहां एक पत्थर का टीला था, ऊपर में सीढ़ी बनी हुई थी। तो रानी ने एक एक गुरु के आश्रम में गई, कि बोली गुरुजी मुझे ऐसे करनी है। बोले एक बछड़ा हुआ है अभी अभी, एक गाय को, चलो उसके पास। वो गुरुजी उसके पास ले गए उसको। वो बछड़ा को देखा, रानी ने बोला कि तुम इसको उठाया, और डेली 20 मिनट 15 मिनट उस बछड़े को उठा के वो पहाड़ पर सीढ़ियां चढ़कर पहुंचती थी। ये क्रम चलता रहा, बछड़ा का उम्र बढ़ता रहा, उसका वेट बढ़ता रहा, और रानी का वो काम कंटिन्यू था। वो बछड़े को गोद में लेती थी, ऊपर जाकर उसको कुछ खिलाती थी, फिर उसको लेके नीचे आ जाती थी। आफ्टर 5 ईयर, जब उस बछड़े का पूरा वेट, बछड़े का वेट करीब करीब 200 केजी 250 केजी हो गया, उसको उठा के वो तब भी जाती थी, और वहां से वो नीचे आती थी। एक दिन राजा ने देखा, तो कहा ये कौन स्त्री है जो ये इतने बड़े बैल को उठाकर ऊपर पहाड़ पर जाती है और वहां से लौटती है। तो उसको जब उसको पता लगाया तो उसको लगा कि रानी है। अभ्यास इतनी, मेरे बच्चों, अभ्यास इतनी बड़ी चीज है। ये साउंड कैसी आ रही है? अभ्यास इतनी बड़ी चीज है कि आप जिस तरफ जीवन की गति को मोड़ देंगे, वही आपकी आदत हो जाएगी। आप देखते हैं वेस्टर्न लोग नमक के बिना खा लेते हैं, मीट कच्चा खा लेते हैं, हम लोग उसको पका के खाते हैं। अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य कैपेबल है कुछ भी करने को, अगर वो उसको उसकी प्रैक्टिस करता रहे तो। ये बड़ी अद्भुत चीज है जिसको, और जीवन में जब भी कभी आपको मौका मिले, जोड़ने का काम करिए। देखिए, आप किसी दर्जी को देखते होंगे, दर्जी जब अपना काम खत्म करता है तो सुई को सिर में खोसता है और कैंची को नीचे फेंक देता है, क्योंकि कैंची काटता है और सुई जोड़ता है। तो जो जोड़ने वाली चीज है वो हमेशा सर पे रहती है, और जो काटने वाली चीज है वो जमीन पर फेंकी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जीवन में आपको कभी कभी लगता होगा कि ये काम मेरे मन के अनुकूल नहीं है, जहां मैं हूं वहां मुझे होना नहीं चाहिए। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैं जहां हूं वहां मुझे नहीं होना चाहिए, इस कॉलेज में मैं हूं मुझे नहीं होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं वहां मुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मनोनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो काम मन के अनुकूल हो वो आपको सुख देगा, और जो काम मन के प्रतिकूल हो वो आपको दुख देगा। आप एक एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लखनऊ स्टेशन से
किसी को 12 बजे रात में पिकअप करना है और आपको ये असाइनमेंट चाचा ने, पिताजी ने, कॉलेज ने, किसी ने दिया हो, आपको लेना होगा। आप सोचेंगे मुझे ये क्यों बुलाया, मैं ही देखा दिखाई पड़ा क्या, और भी तो भाई है मेरा, मुझे क्यों बोला, मैं ही क्यों विक्टिम हूं इसका, बड़े दुखी हो जाएंगे आप। लेकिन आप यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, आपके भाई की साली आई और वो 12 बजे रात में आने वाली है, आपको भाभी ने, मम्मी ने कहा कि उसको स्टेशन, लखनऊ स्टेशन से लेना है, आप जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे क्योंकि साली है भैया की, और आप वहां से उसको लेके आएंगे। एक आदमी को लेने जाना है, जगह फिक्स है, चीजें फिक्स हैं, लेकिन आपको चूंकि वो मन के अनुकूल है तो वो सुख है, और कोई चीज मन के अनुकूल प्रतिकूल है तो वो दुख है। इसीलिए संस्कृत में एक लाइन कहते हैं, मनोनुकूल मनोनुकूल वेदनियम, वेदना दोनों है, आपको जाना स्टेशन है, आपको वहां सामान लाना है, तो मनोनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। आप जो चीज मन के अनुकूल हो वो सुख देता है, और जो चीज मन के प्रतिकूल हो वो दुख देता है। अब मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, मेरे को, आप अगर अपना ब्रांडिंग चाहते हैं, जैसे नाइकी का ब्रांड है, जैसे एडिडास का ब्रांड है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का, टीचर का ब्रांड हो, तो यू शुड हैव टू फॉलो द थिंग आई एम टेलिंग। 5 थिंग्स पर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। पहली चीज, बी ऑन टाइम, जिसको जो समय दें आप। किसी को अगर आप कहते हैं कि भैया मैं 8 बजे आऊंगा, तो यू बी ऑन टाइम, 8-5 नहीं होना। अगर विपरीत परिस्थिति में मान लो कभी समय आपको इधर से उधर होना पड़े, तो प्लीज इन्फॉर्म हिम कि आपको लेट आना पड़ेगा, आना है,